So, hi Gautam. Hello, sir. Congrats Thank for clearing this Indian Economic Services exam 2025 with rank 3, thank you, sir. right? So, please tell something about yourself, your academic background, from where you did your schooling, college, postgrad, and what motivated you to prepare for Indian Economic Services. Sure, sir. Sure. First of all, thank you very much, sir, for this opportunity. And I really want to thank you. You have been really helpful throughout the entire journey. So, yeah, just a brief about myself. So, my name is Gautam. Basically, I am from Madhubani, Bihar, but born and brought up in Delhi only. So, I did my schooling from RPVV Shalimar Bagh, and then pursued BA in economics from Rajdhani College and MA in economics from Delhi School of Economics. I completed MA in 2021. Then I joined Citibank, where I worked for around 1 year, and then American Express, where I further worked for around 2 years. And finally, in June 2024, I quit to prepare full time. Hmm. Main reason why this I wanted to, I was inspired. I wanted to take a stab at this job was because it was it will allow me to work on areas that I really like value. For instance, policy making and research. Right, these two are the areas which I'm really excited about almost always. Hmm. So yeah, this was the main motivation that okay, this is a service where I can do both of these things. No other service I think provides uh, both these things together. So that is why I wanted Both things as in? public policy as well as research. Okay. You Yeah. can do both the Right. things in Both this of them service. here in this. Okay. There are And you very. joined us in which year? I joined in sir 2024 January or February. It was in January, winters. February, yeah. So, okay. And you joined for the test series this year. I joined for the test series this year. Yeah, Okay. January. Okay. So you tell about how you made notes for different subjects and what was your revision cycle, how much time you studied, and we'll take it up from there. Hmm. Got. So one by one revision. Sorry, notes Huh. preparation. So basically, the thing is, I took a course from you. So basically notes were getting prepared in the class. That was Hmm. a thing. However, from books, the books, whatever books I was reading, I also tried to note down some points, not very lengthy. So for instance, if I'm like, for every 10 page I can have a single sheet. For every 10 or 20 page I can have a single sheet of A4 size. This used to be my strategy, that so that it is crisp, because I can't have like 300 pages notes for 300 pages books. So yeah, so this is what I tried to follow. And so basically, one thing that I realized was that keywords and its definitions are important. Graphs are already there in my notebook from classes, so I should be more focused on definitions and the author who gave it. So my own notes from books was primarily hovering around definitions and some other key words if there is any, not specifically diagrams, because they were getting covered in the class. Hmm. It's a revision cycle. Revision cycle is, I was able to cover the syllabus I think by Feb, and after that what I did was, in the next revision took around one full month. March whole went into revision, but during All that four time, papers. all four papers, sir. Hmm. But during that time what I did was I made some short and crisp notes. For instance, my whole G1 was in 10 A4 size sheets. Oh, very Only good. Hmm. 10 A4 size sheets. Similarly, international in 3 A4 size sheets. Some very crisp notes. So with that allowed me to, like, for instance, in April or May when I was writing past years, allowed me to like literally revise G1 in a day. Hmm. From like 10 days to it will be in a day. So this was how revision cycle. So basically till February, cover the syllabus, 1 month, entire revision, all four papers, and then your short notes. It will take some time, it will be painful, but yeah. But those short notes up in April, May, and in June, they are really helpful. So in those 3 months, those short notes. So, I mean, what would be your suggestion? That is preparing long notes first, and then you have to make them short for 10 pages. You Yes. can't just make 10 pages of short notes and say, okay, fine, mera to ho gaya syllabus. No, This is not the way, right? correct, correct, So you correct. have to make long notes first, and from your own notes, you will have to make shorter notes, Correct. right?
So that is one thing. And for the revision, were you doing revision side by side when the course was happening, or you did it afterwards? So basically, the thing is, I since I took the course in January, the course was for me. The course was completed in by October itself. Hmm. Okay. So Hmm. after June, I left the job. October syllabus completed. Then I started studying. Hmm. So not side by side as such because last year You I had some time, right? You September. had Yeah, time. Huh. yeah, I had time. But To otherwise, for revision, right? correct. Yeah. But for everyone else, I mean, मुझे याद है मैंने तुझे भी यही कहा होगा भैया रिवाइज साथ साथ कर हाँ हाँ बट ठीक है हाँ बट आई थिंक इट वर्क्स डिफरेंटली विद एवरीवन correct. Yeah, yeah, correct. दैट इज देयर सो रिवीजन मेरे हिसाब से फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि साथ साथ होनी हाँ चाहिए बट हम तो हर चीज आइडियल बताते हैं अब हम वो ग्राउंड पे कैसे होता है दैट वी डोंट नो बट एक correct. बहुत अच्छी चीज बताई है कि अ, मैंने सारे के सारे G1 के पूरे नोट्स 10 पेजों में बना दिए थे इसका ये मतलब है कि मैं उन 10 पेजों को हर रोज रिवाइज कर सकता हूँ Exactly, exactly. और मेरे दिमाग में वो पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे हाँ तो दैट इज तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपने एक क्लास करी उस एक क्लास में 5-6 पेज के नोट्स बने होंगे उसको हाँ उसको एक पेज या आधे पेज का बनाने की कोशिश करो correct. हाँ एंड सो possible. दैट यू मेक इट साइड बाय साइड इस तरीके से हाँ राइट correct. ओके व्हाट अबाउट पास्ट ईयर सो देयर वर पास्ट ईयर्स डन इन द क्लास आल्सो Yes. इन द नोट्स सो हाउ व्हाट वाज योर अप्रोच Uh, okay. So for past years, so my thing was at least do it twice. है ना? Entire past year, at least write it twice. Even if I'm writing for only 6-7 years, except Indian economy, at least write for 7 years and twice. So some of the questions were getting done in the class also, but my approach then changed a little from January onwards. So I was like, okay, read a topic, do some topic-wise question from last 6-7 years, and then I think in April or May, I think in May, I started or May last week or June first week, I started writing full past year. So first वेरी subject wise, वेरी गुड then मतलब full paper. फर्स्ट इन द क्लास Uh, देन subject टॉपिक wise, yes. सब्जेक्ट Top, में टॉपिक वाइज yes, topic एंड wise. Yes. देन full complete Full, pass. full, yes, full So, complete past I mean, years. I think what I understood from here is that we cannot be overconfident in any way. अरे नहीं नहीं ये तो हमने एक बार कर लिया बस बात खत्म हो गई उधर Correct. याद नहीं था मतलब Exactly, आपको exactly. बार बार लर्न करना पड़ेगा Exactly. एंड उसमें अदर थिंग इज इतना बड़ा कोर्स है ना तो हम हाँ हमको पहले से ही आंसर्स प्रिपेयर करके जाने हम उधर नहीं बना सकते not possible. Correct. Agreed, sir. You Agreed. cannot make answers there. You have to make answers here while you are preparing. मतलब आप सोचे ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सबको पता होता है हाँ हाँ, what are the I mean what are the remedies of market failure in case of externalities this you remember yeah. वो लिखोगे क्या उधर that is the point so you need to write and this is very good that you said कि मैंने अप्रैल में फिर से पेपर्स उठाए now you हाँ. also tell me from which year to which year you did Except Indian economy, I did from 2024, 2024, yeah, 2024 till 2018 or 19 probably, 14 to 19. क्योंकि उससे 2016 से पहले तो बिल्कुल ही अलग हाँ, वो है पैटर्न है 2016 17 में भी उसके बाद लेकिन आई मीन हैव यू सीन थोड़ा सा लेवल डीप होता जा रहा हाँ, है विद एवरी ईयर agreed, दे आर agreed. आस्किंग इवन हाँ, बेटर क्वेश्चंस एवरी yeah, टाइम good questions. बिकॉज द कंपटीशन itself is also increasing Yes, agreed, sir. that is there अच्छा why you were saying except for Indian economy so what Uh, was it yes, on yes. So, for Indian economy, the thing is, almost since 20, so for instance, 20, almost since 2016-17, there has been always having some major changes, policy changes, or some major policies have been coming out. So as a result, the questions have been kept on changing. So okay demonetization, GST, then COVID. Now the questions are so earlier the question used to be like compare pre and post reforms 1991. Now question is like pre and post COVID. हाँ What yeah is very so good I had some conversations with seniors and friends as well. So they all suggested that it's more worth to look at after COVID, that is from 2020 after 2020 onwards, than going before it. So I tried to do it from 2020 till 2025. And interesting thing was during that time a lot of new policies were also announced.
from 2016, let's say, to 2020. So in Indian economic paper, there were a lot of questions on policies which were very new. And so I thought, okay, if, even if I go and do, so for instance, what was the change in corporate tax during 2017? It is not going to make much sense now Hmm. after, let's say, 8 years. So that's why I said, okay, let's keep it aside, only focus on 5 years. And that also within last, for at least for last 3 years, was greater focus. Rest too, I looked at the questions and decided the structure of the answer in notebook and didn't write the complete answers. So But we have to teach everything yeah. just like this, but this is a little risky thing कि हम Ah, इसके ऊपर फोकस, बिकॉज अपने को पता नहीं है पेपर सेट करने वाला कौन है और वो क्या सेट कर दे. सो इट माइट हैव वर्कड. सो आई वुड नॉट से कि यू प्रिपेयर ओनली प्री कोविड पोस्ट कोविड, यू प्रिपेयर ऑल्सो प्री कोविड पोस्ट कोविड. yes, agreed. तो दिस माइट हैव वर्कड, बट Ah, ये तरीका ठीक नहीं है. तो पता नहीं है कैसा आएगा क्वेश्चन, दिस वी डोंट नो. correct. कॉम्पिटिशन है, अपने को नहीं पता कि किस तरह का पूछेंगे. हो सकता है अगले साल यही पूछ लें बस, प्री और पोस्ट रिफॉर्म्स. अग्रीड. तो उसके लिए सर बैकअप ये था ना कि ठीक है, नोट्स मैंने रिवाइज कर रखे हैं, तो ये नोट्स के अंदर है, इफ एनीथिंग जैसे आया था सर सवाल शायद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पे प्री और पोस्ट करने के लिए, तो ठीक है, नोट्स में पढ़ रखा है, तो आई डू I'll इट. be able to handle. Now here, um, uh, last में जैसे this year last, what we also did is that हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी रिकॉर्ड करा. हाँ हाँ तो द पॉइंट वाज कि अपने को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज भी मिल जाएं जो हाँ, इस साल की पॉलिसीज हैं. correct, हाँ सो हाउ यू इनकॉर्पोरेटेड दैट, बिकॉज आई ऑलवेज टेल कि भैया एटलीस्ट पिछले 3 साल की हाँ, पॉलिसीज तो याद होनी चाहिए एग्जाम्पल्स के तौर पे. यू हैव टू गिव दैट इन द आंसर. अग्रीड अग्रीड. तो याद है, I mean, in the test हाँ also I used to हाँ write हाँ, policies, अच्छा. evidence कहाँ है इस बात का, ये सब. एंड और मैंने कई बार ना टोटल नहीं करा है मार्क्स का, बिकॉज मैं मार्क्स देखना नहीं चाह रहा था हाँ कि कितने नंबर आ रहे हैं सब. लेकिन ठीक है. सो हाउ यू अप्रोच्ड इवन, जैसे टेस्ट में जो भी नंबर आते थे, सो हाउ यू हाँ. अप्रोच्ड. सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने ना एक शीट बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर आई डेंट राइट कि मार्क्स कितने मिले हैं. आई हम्म. आई वाज वेरी एग्नोस्टिक अबाउट मार्क्स कि हाँ ठीक है, देख लेंगे वो तो. मेन आई वाज मोर एग्नोस्टिक अबाउट कि कमेंट क्या है, हम्म. और जो कमेंट है वो किस पॉइंट की वजह से आ सकता है. अगर आपको याद हो, एक बार मैंने कॉन्वर्सेशन भी की थी कि ये वाला कमेंट जो है, किस किस पॉइंट की वजह से है. तो मतलब मेरा फोकस उस पर था, मैंने भी कभी सम नहीं किया सर. कौन से क्वेश्चन पे था, मुझे याद नहीं है किस पे. आ, सर G1 का ही कोई क्वेश्चन था, नहीं G2 का क्वेश्चन था, समथिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड, आई टोटली फॉरगॉट. डिस्कस करके था कोई क्वेश्चन, उसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी थी, एंड उसमें आपका कुछ कमेंट था कि इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रिटन इन अ बेटर वे, मोर स्ट्रक्चर्ड वे, एट दिस. तो I think देयर I आई was वाज. expecting a mathematical argument for that. हाँ पॉसिबल, इट इज हाँ, पॉसिबल. हो तो सकता है. हाँ हाँ हाँ. हाँ, तो So, देयर आई वाज. तो मतलब मेरा वो अप्रोच रहता था कि ठीक है, मार्क्स मैंने भी नहीं किया है, एक पहले वाले के किए होंगे प्रॉब्ली, फर्स्ट टू टेस्ट के, उसके बाद आई डेंट, मतलब क्या बिकॉज ठीक. एक इकोनॉमिक सर्विसेज वाले बच्चों से ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप थोड़ा सा हाँ मैथमेटिकल अगर होगा तो लिखोगे. ठीक है, हाँ राइट. एंड हालांकि तू लिख रहा था उसमें, आई मीन इवन इन द टेस्ट आल्सो यू वर राइटिंग, बट स्टिल कहीं कहीं तो ये हाँ ऐसा. मैं बार बार सबसे कहता हूँ, जो टेस्ट है और रिजल्ट है उसको हम नहीं देख सकते, बिकॉज हाँ वो, मैं सच बताऊं, आई मीन इंटरव्यू तो पूरी ऑलमोस्ट बहुत बड़ा फैक्टर लक का भी है. हाँ ठीक है. आप उस समय आपको क्या ध्यान में आया, हाँ आपको वो आंसर याद आ गया कि नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे रिटर्न क्लियर करके उसमें पहुंचे, हाँ, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं. करेक्ट अग्रीड. उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता. उसके बाद तो थोड़ा सा फैक्टर तो लक हमेशा का रहता ही रहता है. सो दिस वाज हाँ योर फर्स्ट अटेम्प्ट और नहीं सेकंड. सर, लास्ट ईयर मैंने दिया था, हाँ. बट बिकॉज विद जॉब तो आई डिडंट अच्छा. स्कोर वेल. ओके. अच्छा, तेरा कोर्स भी तब तक पूरा नहीं हुआ था. सर कोर्स आधा भी नहीं किया था मैंने जून तक, क्योंकि जॉब चल ओके. गई. सो देन हाँ यू अंडरस्टूड कि हाँ भैया ऐसे. हालांकि हाँ आई ऑलवेज टेल पीपल डोंट लीव जॉब, डोंट लीव जॉब. बट पता नहीं हाँ कितने सुनते हैं मेरी बात, कितने नहीं. बट हाँ. ठीक है. बेट था सर, मतलब द प्रॉब्लम थी कि मेरे को, सो आई वाज प्रमोटेड, तो हम्म. प्रमोटेड भी हो गया था, टेन्योर्ड भी था, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी सर, तो मैनेज करना बहुत ही टफ हो रहा था. तो मेरे को लगा कि अब करते हैं एक फाइनल अटेम्प्ट, एक फाइनल स्टेप, देखते हैं, तो ओके. इसीलिए. सो व्हाट, अच्छा एक बार एक एक सब्जेक्ट
वाइज एक बार बताओ कि कौन सी बुक्स यूज करी थी, और हाँ, कैसे कैसे नोट्स थे रिवाइज, जस्ट इन ब्रीफ फॉर ऑल 4 पेपर्स। पेपर 1 से स्टार्ट करते पेपर वन में सर माइक्रो के लिए, मतलब माइक्रो के लिए मैंने पूरी माइक्रो, माइक्रो एज इन कंज्यूमर प्रोड्यूसर वैल्यू वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल 5 टॉपिक्स, सिर्फ मैंने कुछ चाइनीज पढ़ी थी, तो हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कुछ नहीं। sadness था। ठीक। सर फिर स्टैट्स के लिए आई डेंट रेड एनी बुक, नोट्स ओनली। हम्म। मैथ्स सेम, नो बुक, नोट्स ओनली। इकोट्रिक्स गुजराती के पहले आई थिंक 13 चैप्टर 12 चैप्टर। स्पेसिफिकेशन एरर था क्या? 12 चैप्टर, हाँ। ओके हाँ, तो फर्स्ट 12 चैप्टर्स वो पढ़े थे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था उसके बैक वाले, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल जो थे दैट आई ओनली डू। हम्म। ठीक है, दिस इज फॉर जी1। बट वो सेम सॉल्व एग्जाम्पल तो नोट्स के अंदर भी थे। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए हम्म। इसीलिए तो हम्म। फिर वो जी1, सॉरी जी1 टिल दे, जी2 में मैक्रो, जो मुझे लगता है मैंने बहुत ही अजीब काम किया था, वो तो एचएल हो जाए मैंने कवर टू कवर पढ़ी थी, तो 1000 पेज बुक टुक मी ओके। सो मच। एचएल हो जाए कवर टू कवर पढ़ी थी सर, व्हाट इज दैट? इंटरनेशनल। बिकॉज मेरे में वो पेशेंस नहीं है हाँ कि वो, मतलब आई थिंक आई वाज नेचुरल आहूजा मैं हमेशा तब उठाता हूँ जब मुझे कुछ नहीं कहीं और से कुछ नहीं मिल रहा होता। मिला एग्जैक्टली। बट उसको कवर टू कवर इट्स अ गुड बुक। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ गुड बुक, बट बहुत बढ़िया है, और कई बहुत बहुत, जगह लगता है कि हो गया ठीक है। मैं वही एग्जैक्टली। तो मतलब आई डोंट रेकमेंड एनीबॉडी टू डू ब्लैंक। व्हाई, आई मीन दिस इज यू, मैं फिर भी सबको ये कहता हूँ कि पिकअप डॉन बुश हाँ हाँ, और डॉन बुश, फ्रॉइड है। थोड़ी कॉइन, सी हाँ डिफिकल्ट बुक्स हैं लेकिन कॉम्पैक्ट हैं। कॉम्पैक्ट है। हाँ सर, हाँ। कॉम्पैक्ट है। और तो क्या था? डेवलपमेंट। इंटरनेशनल, सॉरी डेवलपमेंट, एपी थिलवॉल, वॉल वॉल। एक्सीलेंट बुक। खाली उसमें एक लास्ट सेक्शन मैंने नहीं पढ़ा था, उसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट करके एक सेक्शन था, मुझे लगा वो एनवायरनमेंट में कवर होगा, लेट्स नॉट स्टडी इट हियर। उसमें से हम मैंने भी लिया उसमें सोशल कॉस्ट का पूरा जो हाँ, टॉपिक है, दैट बहुत भी बहुत अच्छी अच्छा रिटन किया। बुक है, बहुत अच्छी रिटन बुक है सर, बहुत एक्सीलेंट। अगेन इट्स अ डिफिकल्ट बुक, हाँ मतलब बट वेरी वेल आप, रिटन बुक, हाँ, हाँ। वेरी वेल रिटन एंड इट्स अ डिफिकल्ट बुक इन द सेंस, हाँ, लेकिन आप आराम से पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। अब समझ में आएगा, बहुत बढ़िया लिखा है सर। हाँ ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन ऑर्डर टू हाँ, रीड दीज करेक्ट, हाँ एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स। हाँ। हाँ। फिर हम्म। इंटरनेशनल में सर सेल्वाटोर, सेल्वाटोर के लास्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े थे, ब्रेटन वुड्स जब वो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर 20 21 ऑनवर्ड्स, 20 और 21 ये तो नहीं पढ़े थे, बाकी सेल्वाटोर फॉर इंटरनेशनल। सो दिस इज ऑल इन एडिशन टू नोट्स, राइट? यस, दिस इज ऑल इन एडिशन टू नोट्स। लिखने के बाद। हाँ हाँ, ओके। ऑल इन एडिशन टू नोट्स। हम्म। इसके अलावा जी2 के लिए आई डेंट रीड एनीथिंग एल्स, क्योंकि बाकी सब उसी में कवर हो गया था, बीओपी एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग सब कुछ उन्हीं बुक्स में कवर हो गया था। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रमेश सिंह करके बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, हम्म। उसमें बहुत ही उन्होंने ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉम्पैक्ट सा सेक्शन दे रखा है सर, तो आई जस्ट पिक दैट अप एंड रेड इट। उन्होंने हाँ। बहुत ही वो दे रखा है, और जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें एक साल सवाल आया था, तो ये सब चीजें जो उन्होंने दे रखी हैं बहुत सही से एक्सप्लेन हम्म। करके, तो वो उन्होंने मैंने। मैंने मैंने इसका ना ये उससे लिया था, लॉ के अंदर पढ़ता था मैं, तो हाँ उधर हाँ एक पेपर था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो हाँ उसमें एक छोटा सा, एक कोई एक, उसको दुक्की कहते थे हम लोग। तो उसमें उसकी दुक्की आती थी, हाँ नहीं आती थी। और बट वो बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है, हमको इतना नहीं करना था इतना डिटेल में यहाँ पे हाँ पेपर के लिए, बट आई टुक पॉइंट्स फ्रॉम देयर। तो अगर कोई हाँ हो आसपास डी स्कूल के, तो वो लॉ फैकल्टी में जाके यू कैन जस्ट बाय दैट बुक, हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की दुक्की। ओके, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई उसमें कुछ पूछ सकता है हाँ कि, हाँ सो हाँ, वो, मत उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता ज्यादा उसमें। नहीं आ सकता सर, हाँ है, मतलब जो कुछ भी, लेकिन वो बहुत ओवर है, पूरा नहीं करना है, कोई सुन रहा हो तो हाँ सोचे हाँ कि ये अच्छा। एक चीज और आई जस्ट हाँ। वांट टू टेल कि डू वी रियली हैव टू रीड ऑल बुक्स कवर टू कवर, वर्ड टू वर्ड? बिकॉज हमारे को अपने पेपर और पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना हाँ पड़ेगा। अग्रीड, अग्रीड, आई आर आइडिया इज नॉट टू कंप्लीट अ बुक बट द सिलेबस। करेक्ट, हाँ हाँ अग्रीड। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये मेरी मिस्टेक है, ना टोटली एक्सेप्टेड कि मैं बुक उठाता था तो पूरी ब्रूट फोर्स के साथ, मेरे लिए बहुत इररेसिस्टिबल हो जाता है कि मैं किताब उठाऊं और बीच से पढूं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात easy। भी है, मतलब मैं इसको बुरा नहीं मानता। हाँ हाँ, तो आई, ये, हाँ इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट आई ऑलवेज टेल कि भैया थोड़ा आराम से, आराम कोई से, जरूरत हाँ उस जगह की उस चीज की तो करो, अदरवाइज यूज योर टाइम समवेयर वाइजली। करेक्ट, हाँ।
तो इंडियन ये इको। एक क्वेश्चन है। हाँ, इंडियन इको। इंडियन इको में उमा कपिला मैम की जो छोटी छोटी वाली बुक आती है, पतली यस। वाली, उसको मैंने कवर टू कवर पढ़ा था। और फर्दर रमेश सिंह सर की जो बुक आती है उसके अंदर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे थे जो कि जैसे फॉर इंस्टेंस जीएसटी, उमा कपिला मैम के में पूरा वो हाँ नहीं, डिटेल में कुछ जीएसटी नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही और सिमिलरली एनवायरनमेंट की कुछ एक जो अलायंसेज है इंडिया के, इंटरनेशनल अलायंसेज डोमेस्टिक लेवल पे क्या कर रही है, ये सब चीजें नहीं दी हुई है। एक तो वो उस एक और बुक आती है संजीव वर्मा शायद, नहीं वो सर। और छोटी बुक है। हाँ तो दैट ऑल्सो कुड बी टेकन अप एज एन अपेंडिक्स टू उमा कपिला। हाँ हाँ सो हाँ। वो है, बिकॉज यू कांट टेक दत्त एंड सुंदरम एज एन अपेंडिक्स टू उमा कपिला, वो नहीं, बहुत बड़ी बुक है, वो बहुत बड़ी। कंप्लीट हाँ होना। हाँ, यू कैन टेक इट अप, कभी कहीं से कुछ नहीं मिले, वो दत्त एंड सुंदरम में 100% होगा। हाँ हाँ और उन्होंने ना लिखा बड़े अच्छे तरीके से, इन द सेंस के कुछ चीजों में बड़े पॉइंट वाइज, और जैसे हाँ। आंसर्स लिखने हैं वैसे लिखा हुआ है उन्होंने। बट वो उसका साइज देख के आपको घबराहट होने लग जाती है, कैसे होगा कंप्लीट एंड ऑल दिस। सो इट्स लाइक दैट, बट अदरवाइज इट्स अ गुड बुक। आई थिंक उमा कपिला शुड बी डन एंड देन दत्तन सुंदरम या संजीव वर्मा या रमेश सिंह, जो भी, कोई एक हाँ बुक को तो अपेंडिक्स बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा सर, कवर अप नहीं होगा नहीं तो अदरवाइज। हाँ, हाँ वो बिकॉज सारी चीजें, लेकिन मैम से अच्छी क्रोनोलॉजी नहीं लिखी है किसी ने भी, जिस तरह से हाँ मैम ने पूरी हाँ इंडियन को ऐसे समझाया है। बट हाँ। अगेन, मैं जैसे कल भी मैं अभिषेक से ही बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि आई नीड टू टेल दिस कि इट्स अ डिफिकल्ट रीड। इट इज, एट टाइम्स इट इज, आपको इट कुछ इज अ डिफिकल्ट रीड, मतलब आप ये मत सोचो इट्स नॉट अ बेड टाइम रीडिंग। इट इज नॉट, नो, डोंट टेक लाइक दैट, नो। हाँ, तो आपको, और क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए पढ़े हैं, तो हमको तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा भी उसमें। पड़ेगा, हाँ, उसके बिना नहीं हो सकता सर। वो वो ये है, तो ये तो करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, चलिए। और अच्छा, दूसरी चीज, आई थिंक आई कॉल्ड यू वंस और ट्वाइस इन बिटवीन एंड हाँ योर फोन वाज हाँ ऑलवेज स्विच ऑफ। हाँ, माय फोन इज दैट ऑल। वाज अ गुड थिंग। आई वांट टू आस्क दिस कि अच्छी बात है कि मैंने सोशल मीडिया से दूर हो गया हूँ, इफ हाँ आई वांट टू क्लियर दिस पेपर। हाँ हाँ। सो बेसिकली द थिंग इज कि मेरा इंटरनेट इज ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑफ। आई एम ऑलवेज रीचेबल ऑन फोन कॉल, इवन इफ आई एम स्लीपिंग, I'll pick up your phone call, but it is 100% that I'll miss your WhatsApp call. Phone call I'll pick up, WhatsApp call I'll for sure miss. So हम्म। there are some times when like किसी ने मैसेज किया और मैं 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खोल के देख ही नहीं रहा हूँ। और ऑल्दो ऐसा रहता है कि क्योंकि मैक में ओपन है तो वो मैसेज डिलीवर हो जाते हैं, पर फिर भी अब मैक बंद रहता है, लैपटॉप तो नहीं देखता हूँ मैं, तो इसीलिए You don't get an urge also to look at what anybody would have जब तक messaged, और कोई YouTube देखना या कुछ, nothing? नहीं, यूट्यूब का तो होता है सर, तो जब तक टिंग नहीं आएगा ना फोन में, तब तक हाँ। नहीं आता है मेरा ध्यान। ठीक है, पड़ा हुआ है। उधर। यूट्यूब का ये है कि हाँ, हाँ, सॉरी। YouTube के लिए क्या क्या क्या? यूट्यूब का ये है कि ना, ये जो एक खराब आदत, मतलब आदत लग गई थी या जो भी बोलो सर, आरबीआई का एग्जाम देने के बाद सितंबर में लास्ट ईयर की, भाई शॉर्ट स्क्रॉल करने की आदत लग गई थी। हाँ। तो उसके लिए ट्रिक ये थी कि मैं अपना लैपटॉप का भी वाईफाई बंद रखता था और यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड करके रखता था कि ठीक है, देखना है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डाउनलोडेड देखो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कंट्रोल कर पाऊंगा अपने आप को कि हाँ ठीक है। अदरवाइज आपको टाइम ही नहीं पता लगता, 15-20 मिनट कहाँ निकल गए। सर 20 मिनट तो आप बहुत ही कम बोल रहे हो। मतलब ऐसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ निकल गए, ये तो ऐसे ही हाँ निकल गया आपकी लाइफ हाँ से। ठीक। हाँ नो एंड टू इट। हाँ, नो नो। नो एंड टू इट, मतलब इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। आप, हाँ उसका कोई एंड नहीं है, आप गिरते ही चले जाएंगे। और एग्जैक्टली आपकी पूरा जीवन भी कम है उसके पूरे यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखने में। एग्जैक्टली सो इट्स एग्जैक्टली। इट्स लाइक दैट। दूसरी चीज विच आई रिमेम्बर आई हैड टू आस्क यू, एक तो यही कि सोशल मीडिया से कितना दूर था। तो सोशल मीडिया से तो दूर बहुत था इसके हाँ अंदर। हाँ। और और चीजें, मतलब आई जस्ट नीड टू, बिकॉज ये बच्चे हमसे पूछते ही हैं कि हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू स्टडी, and or what is your routine like? I mean, are you a night person or a morning person? What night person? नाइट पर्सन सर, मिक्स ही होता था, मतलब माय डे यूज्ड टू स्टार्ट एट 11। अच्छा। इट्स ऑल्सो स्टार्टेड राइट नाउ, ऑल्सो स्टार्ट एट 11, और फिर वो 2 बजे तक रैप अप होता था। अच्छा। और रात मतलब हाँ, रात में 2 बजे तक में। हम्म। फिर आराम से। तो बेसिकली द थिंग इज कि सर डे टू डे डिपेंड करेगा। तो मतलब मेरा ये रहता था ना कि सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझसे अक्टूबर में पूछोगे तो अक्टूबर में आई हैड अ मंथली टारगेट्स, ठीक है, मंथली, और फिर उसके बाद वीकली ड्रिल डाउन था। तो इट मे टेक 6 आवर्स सम डे, इट मे टेक 7 आवर्स, आई मे सिट फॉर लेट्स से 8 आवर्स सम डे। आई मीन हम्म। नॉट
gone beyond except interview time and some 1 week before the exam or 2 week before the exam, never sat more than like 8 hours. During those times probably 12 13 I sat. मतलब सैट पढ़ा तो नहीं हूँ उतना, पर हाँ बैठा था उतने 9 8 9 ही बैठ पढ़ा हूँ पर। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क दैट, आई मीन व्हाइल आई टुक योर इंटरव्यूज, उसमें हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि तुझे बहुत सारी न्यूज़ की चीजें भी पता है, यू आर हाँ एबल टू आंसर इट कनेक्टेड. हाँ So, were you reading also newspaper side by side daily, or which newspaper, and how you kept up with all the current affairs? हाँ ओके। करंट अफेयर सर, प्रिपरेशन फेज के दौरान ना आई कुडंट डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। मतलब प्रिपरेशन फेज के दौरान मेरा जो करंट अफेयर्स का इशू रहता था वो बेसिकली विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की। आई यूज्ड टू पिक दैट अप, और जो भी उसमें से मेरे लिए रेलेवेंट है मैंने मार्क किया, और रात में मतलब लेट्स से बिफोर गोइंग टू बेड मैंने वो देख लिए जो भी 4 6 टॉपिक्स हैं। वो 100 पेज की आती है, उसमें से अगर आप filter out करोगे अपने लिए कंटेंट तो probably 50 pages every night, even if you read 5 pages like let's say for 15 minutes you are up to mark। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था मैं, वो पढ़ता था। पर फॉर इंटरव्यू लाइक जब लेट्स से जब नहीं हाँ जब रिटर्न का रिजल्ट आया था उसके बाद से मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, दैट वाज नहीं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किए थे, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट। पहले कुछ दिन इट वाज वेरी पेनफुल, इट यूज्ड टू टेक मी लाइक 4 hours to read 2 newspapers, बट देन आई लर्न कि कभी आगे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, हमेशा Hmm. आप पीछे से स्टार्ट करते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और बोरिंग खबर पीछे होती है। तो फिर उसके बाद आई मतलब आई लर्न दैट ठीक है, पर फिर अब नाउ आई कैन रीड लाइक न्यूज़पेपर इन लेस देन 45 50 minutes। एक गुड. मैं जनरली बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर इनके इफ यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, सो पिक अप एनी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, एंड तुम्हारे हाँ को अ, अपना इंडियन इको का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा ध्यान से हाँ याद होना चाहिए हाँ कि agree। क्या क्या चीजें पढ़नी है. हमको सब चीजें नहीं पढ़नी है उसमें, हाँ हाँ हर agree। मर्जर नहीं पढ़ना, हर चीज नहीं पढ़नी, हाँ ऑफकोर्स टू नो, बट नो यू कांट रिमेम्बर एवरी मर्जर और एवरी हाँ एक्विजिशन, sure। यू कांट रिमेम्बर ऑल दैट. हाँ इट्स बट इम्पॉसिबल। तुमको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में ऑन क्या हो रही है मेन हाँ चीज. ये मेन चीज़ है सो हाँ। क्या उन्होंने कोई नया एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन आया है, या हाँ फिर इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, इज देयर एनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी which came, or labor law में क्या, so something you should know. I'm not even, we are not expecting you to write everything from the newspaper, but just have it in your head. करेक्ट And the agree। best is कि हिंदू का या किसी का भी हाँ एक मिंट का है, किसी का एक जो ई न्यूज़पेपर आता है उसका हाँ सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए, और हाँ आर्काइव्स में उसके जाके पिछले 6 महीने के 1 साल की न्यूज को थोड़ा सा तुम बस ऐसे कॉपी पेस्ट ही कर लो, जस्ट टेक अ हाँ स्नैपशॉट, पुट इट ऑन वर्ड, और वेर agree। एवर इज योर ई नोट वाले जो भी, एंड देन यू जस्ट रीड इट ओवर द टाइम. हाँ, इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा न्यूज़पेपर के लिए एक अलग से टाइम निकालने से अच्छा है जस्ट डू हाँ दिस. जस्ट अग्रीड सर हाँ। ये वाला ज्यादा. एंड ये जो तरीका है कि मैंने इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करा, वो तो अगेन इट्स रिस्की थिंग, हाँ बट थोड़ा मतलब पहले से अच्छा 20 मिनट ही, दैट इज हाँ इनफ. हाँ बट अपने अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज में क्या हो रहा है, लेबर में क्या हो रहा है, कोई प्राइसेस इन्फ्लेशन का ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है, सो दिस यू शुड नो. कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है तो बस तुम्हारा कान खड़ा हो जाए, मतलब हाँ कि दिस वो दिस कुछ नहीं इज, होना चाहिए हाँ। ये चीज है. हाँ, ये चीज इसको लिखना है कहीं. ओके, ये वन एडवाइस व्हिच यू कैन गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. okay, one advice, so relax and like have a well maintained routine, it's Hmm. and like have targets weekly at this stage of time, not at this stage of preparation, not weekly, and it Hmm. to meet friends every week, that's what I did। मीट फ्रेंड्स एवरी वीक. yep वेरी agreed। गुड. मतलब मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि थोड़ा सोशल लाइफ थोड़ी सी कम करो, क्योंकि लास्ट में करनी पड़ती है. हाँ इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि मेरी जो सोशल मीडिया वाली लाइफ थी वो मैंने जीरो कर दी थी, सो दैट हैव आई कैन सिट। रियल सोशल लाइफ. हाँ मतलब हाँ कि मतलब आई नीड सम टाइम विद फ्रेंड्स, जोक अराउंड पुलिंग ईच अदर्स लाइक्स टू, सो दैट आई कैन स्टडी द नेक्स्ट डे, तो मतलब ये है। So what are the future plans, Savel? PhD or not PhD? What? सर अभी बहुत नहीं सोचा है मैंने इस पे, अच्छा, इतना आगे नहीं. अभी टाइम ही नहीं अभी. मिला है सर, हाँ, आराम से 1 2 दिन में अभी सोचूंगा। अभी तो it's a festive season for you also. हाँ Yes. यप चलो,
ठीक है. So thank you very much and Thank you. congrats once again. All the best and do Thank very well in life. thank you very much. Bye.